प्रभु का धन्यवाद कि आज हमें फिर एक समय दिया गया है। Thanks be to the Lord that the time has been granted unto us today. हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर सकें। That we are able to receive the blessings of our God. जो लोग आज यहाँ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, The people who have come over here in the presence of the Lord, उनके लिए जो बड़ी बात है and this is a big thing for them, कि प्रभु ने यहाँ आपको आने के लिए अनुमति दी है। that it is the Lord who has allowed you to come at this place. वो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से प्रभु की स्तुति करने के लिए नहीं आ सकता। No man can come into the presence of the Lord to worship him by his own will. वही आ सकता है जिसके ऊपर प्रभु ने रहम करम किया है। Only the one can come upon whom God is merciful. इसलिए आप धन्य हैं जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं। Blessed art thee, for thou art listening to the word of God. पूरी दुनिया में ऐसे देश हैं यहाँ लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए मर रहे हैं। And in all the world, many countries, people are dying to listen to the word of God. वहाँ प्रभु का वचन सुनाने के लिए बैन किया गया है। And the word of God, the preaching of the word of God is banned in those countries. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम धन्य हो जो आज प्रभु का वचन सुन रहे हो। That's why I'm telling you, you are blessed, you are listening to the word of God. क्या आप मेरे साथ ऐसे बोल सकते हैं कि हम धन्य हैं प्रभु, आपका शुक्र है। Can you proclaim with me, Lord, I'm thankful to you for blessing us. कंफ्यूजन में मत रहो। Do not remain in a confusion. आप धन्य हैं क्योंकि आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। Thou art blessed, for you are listening to the word of मैं God. सच कहता हूँ आप धन्य हैं। Truly I say unto you, you are blessed. अगर आप विश्वास करेंगे तो सच में आप धन्य हो जाएंगे। If you shall believe, you shall be a blessed person. आज हम देखते हैं कि एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। And we will look into a man who came unto Jesus Christ. आज भी बहुत से यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। And so, in the same way, many have come unto Jesus Christ. क्या मैं सच बोल रहा हूँ? आप यीशु मसीह के पास आए हैं? Am I speaking the truth? You have come to Jesus Christ. बहुत से लोग बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास आए, Bible says many people came unto Jesus Christ. मगर सब लोगों के आने का मकसद भी अलग अलग था। But the coming of many, they had different kind of reasons to come to Jesus. और उनके आने का समय भी अलग अलग था। And the time they came into was also different. अगर आप निकोदेमस को देखें तो उसके आने का समय कोई और था। If you see Nicodemus, his time of arrival was totally different. अगर आप उस कोढ़ी को देखें तो उसका समय कुछ और था। His time was different. मगर जो बीमार आया उसके आने का समय कुछ और था। And the one who was sick, the time he arrived was totally different. और आज आप आए हैं, आपके आने का समय भी कुछ और था। And you have come today and you came and your time was different. मकसद भी कुछ और है। The reason was different. मगर जो आज आए हैं But the ones who have come today, वो भी यीशु मसीह के पास ही आए हैं। and they have come to Jesus. कुछ लोग अपने सवालों के साथ आए थे, Some came with a question. कुछ बीमारियों के साथ आए थे, Some have come with a sickness. कुछ प्रभु की शक्ति को देखने के लिए आए थे, And some came to see the power of God. कुछ स्वर्ग में जाने के लिए आए थे। And some came to go to the kingdom of God. और मुझे विश्वास है And I believe आज जितने यहाँ आए हैं all who have come today, वो सब उद्धार पाने के लिए आए हैं। they have come for salvation. तो आज मैं यहाँ देखता हूँ एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से बदल देने वाला है। And I see the Holy Ghost transforming every single person over here. हम चाहते हैं बदल जाएं। We want that change should come. प्रॉब्लम है हम बदल नहीं पाते। But the problem arises that we do not get change. हम चाहते हैं हम ऐसा नहीं, हम ऐसा करना है। We want that we should not do like this, but like this.
चाहते तो हैं We want, मगर बदल नहीं रहे। but we are not changed. आज पवित्र आत्मा आपको पूर्ण रीति से बदल देगा। Today the Holy Ghost shall change you completely. मैं कहता हूं सच में, I tell you truly, आपके शब्दों में आज ही शक्ति आ जाएगी। in thy word shall today come the power. तुम परमेश्वर की आशीष को अपने ऊपर देखोगे। You shall see the blessing of God upon you. तुम परमेश्वर की उस अभिषेक को जो आपके जीवन में काम करना चाहता है देखोगे। You shall see that power and anointing of God that wants to work upon you today. जिनकी हड्डियां सूख चुकी हैं, आप देखोगे वो अभी की अभी ही हो जाएंगे। Those who have dried up bones, you will see them healed today now. प्रभु यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। Jesus Christ is the God of miracles. वो आज भी चमत्कार करने की शक्ति रखता है। He is worthy to do it today. वो आज भी चमत्कार कर सकता है। And he can do the miracles today. अगर आप विश्वास करें, If you believe, तुझे विश्वास करना you पड़ेगा। ought to believe. तुम विश्वास करो You believe. तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। You will see the glory of God. अगर आप विश्वास के साथ आए हैं If you have come with faith, तो प्रभु का आत्मा आपको आज चंगा करेगा। the Spirit of the Lord shall heal you today. चंगा करेगा। He shall heal मैंने you. बोला वो चंगा करेगा, I say he will heal you. क्योंकि मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है। It's written like this in my Bible. जो विश्वास से आएगा, Whomsoever believe. हालात बदल जाएंगे, Oh, the circumstances change. जीवन बदल The जाएगा। lives will change. प्रभु का ऐसा अभिषेक आएगा। Such an anointing of God. शायद आप पहले वैसे अभिषेक से अभिषेक नहीं किए गए। You might have not been anointed earlier like this anointing. आज परमेश्वर का अभिषेक आपको बदलना चाहता है। The anointing of the God wants to transform you आओ today. हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। Come, let's look into the life of a person who came to Jesus. अगर आप अपनी बाइबल में से देखना चाहते हो And if you want to look into your Bible, तो आप देख सकते हैं लूका 5 उसकी 12 से। Luke, Gospel of Luke, chapter 5, verse 12. देखो वहां क्या लिखा है। Let's see what's written over here. जी क्या लिखा है? जब वह किसी नगर में था, हाँ क्या है? जब वह किसी नगर में था। नगर में कौन होता है? लोग रहते हैं नगर में। यीशु मसीह लोगों के बीच में था। हालेलुया। तो आज भी मैं देखता हूं यीशु मसीह हमारे बीच ही हैं। पहचानना है आपने, यीशु मसीह को पहचानना है। यीशु मसीह कहां है? जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, सभी लोगों ने यीशु को नहीं देखा। बस वही लोग यीशु मसीह को देख सके जिनको यहोवा परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो यीशु मसीह को देख लें। सभी ने नहीं देखा। मैं बाइबल में एक व्यक्ति का नाम जानता हूं जो बहुत ही कद का छोटा था। क्या आप उसका नाम जानते हैं? क्या था वो? कद का छोटा था मगर किसको देखना चाहता था? किसको? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई। तुम जिसका नाम ले रहे हो वो कुदरत, हुकूमत और इख्तियार के ऊपर उसका नाम है। तो उसका नाम कैसे लेना चाहिए? यीशु को। किसको देखना चाहता था? हाँ, जो लोग बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, उसके ताला लगा है। जीव को शैतान ने ताला लगा के रखा है आपको। आज आपने उस ताले को तोड़ना है। जब वो टूटेगा तो बाइबल में लिखा अमृत जल की नदियां आप में बहने लगेगी। हालेलुया।
तो अमृत जल की नदियां ये परमेश्वर का वचन ही है जो बहता नहीं है। अमृत जल क्या सोचते हैं आप? ये परमेश्वर का वचन ही अमृत जल है, जहां से बहता है वहां से लोग पीने के लिए आते हैं। और अगर आपसे बहना शुरू हो जाए तो लोग आपको मिलना शुरू करेंगे, क्योंकि आप में से अमृत जल बहना शुरू हो चुका है। वो कद का क्या था? छोटा था, हिंदी में नाटा था। हालेलुया! क्या था? नाटा था। तो जिसको जो मेरे जैसा सुनेगा नाटा क्या होता चक्कर में पड़ जाएगा। तो वो कद का छोटा था, तो देखना किसको चाहता था? यस, किसको? एक बार सारे मिलके, किसको? ऐसा जब आप बोलना शुरू करोगे ऊंची ऊंची आवाज से, तब आप जीतना शुरू करोगे प्रभु के नाम से। कितने जीतना चाहते हैं आज? वेरी गुड। कोई भी हारना, हार को कोई भी पसंद, मगर हार है। बहुत से लोगों के जीवन में हार है, मगर आप पसंद नहीं करते। इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, आप पसंद नहीं करते। अगर आप अनुमति देते हैं, पसंद नहीं करते, तो वो आएगी। अगर आप जीत को पसंद करते हैं तो जीत आपके जीवन में आएगी। जब तक अमृत जल के लिए आप अपने मुखिया को खोलेंगे नहीं, तब तक आपकी जीत नहीं होगी। तो जब भी चर्च में बोला जाता है तो आपने सबसे पहले बोलना है। सबसे आशीष सबसे पहले चाहिए, ठीक है? आशीष सबसे पहले चाहिए। हम तो ऐसे आदमी हैं, हमें तो चाय भी सबसे पहले चाहिए, तो आशीष भी सबसे हमें पहले चाहिए। अगर पहले चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर चाय आपको पहले चाहिए तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले भाग के जाते हैं सबसे पहले चाय लेने के लिए। तो अगर आशीष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भाग के। कैसे भागना पड़ेगा? दिल, दिमाग और पैरों से। सबसे पहले दिमाग में आएगा, भागना है आज प्रभु के नाम से। बहुत से लोग जीतना चाहते हैं मगर भागते नहीं हैं। जो भागता नहीं है वो सपने देखता है, जीत नहीं सकता। तो मैं कहता हूं, आज आप भागना शुरू करो, आप जीत जाएंगे प्रभु के नाम से। इतने लोग थे वहां, इतने लोग थे, इतने, वो दिख ही नहीं रहा। वो यीशु मसीह को देखना चाहता, दिख ही नहीं रहा, उसको दिख नहीं रहा। कौन है यीशु? कहां है? ऐसे कर करके देखा। वो किसी ने देखा, ये अच्छा भला आदमी है, अच्छे घर का है, इसको आज हुआ क्या है? कभी भाग के उधर जाता है, कभी भाग के इधर जाता है, कभी भाग के उधर जाता है, कभी किसके कंधे पे हाथ रखता है, कभी कुछ करता है, कभी इसको आज हुआ क्या है? मगर कोई नहीं जानता था वो आज किसको देखना चाहता है। देखा, आपके ताला लगा है, खोलने की कोशिश करो। किसको देखना चाहता है? हाँ, ऐसे जब आप बोलना, शैतान नहीं चाहता आप बोलने, चाहता नहीं है। वो बोले, बाइबल में क्या लिखा है? अंधा देखेगा, गूंगा, बोलो गूंगा, और जो यहां बोलता नहीं है वो कौन है? गूंगा है। क्यों गूंगा है वो? असल में तो वो बहुत पटर करता है, मगर जब प्रभु के वचन की बारी आती है तब वो क्या है? बोलो। गूंगा आदमी आपके घर में है तो मुसीबत है कि नहीं? अगर गूंगा आपके घर में है, मुसीबत है कि नहीं? नहीं तो वो कुछ ना कुछ टक टक करता रहेगा। अगर आपको गूंगा पसंद नहीं है, गूंगा हिंदी में क्या है? गूंगा ही होता है। चलो जी, गूंगा गूंगा ही होता है। हालेलुया। जो गूंगा है वो बोल, देखो यहां कितने गूंगे हैं, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं,
जिनको सुनता नहीं है। और ये सब बाइबल में लिखा क्या हो जाएंगे? क्या लिखा? क्या हो जाएंगे? ये सब ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। जितने गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े। लंगड़ा कौन है? जो प्रभु के पीछे नहीं चलता। समझे आप? अगर आप प्रभु के पीछे नहीं चलते तो आप क्या हैं? आज तक आप वही देखते हैं। अच्छा, लंगड़ा कौन है यहां? अंधा कौन है यहां? गूंगा कौन है यहां? बहरा कौन है यहां? जे सब जो बैठे थे एक दिन अंधे, गूंगे और बहरे थे, और प्रभु आपको चंगा कर रहा है। यह आत्मिक बात है। वो किसको देखना चाहता था? किसको? काफी गूंगे बोलने लगे हैं आज। हालेलुया! ये बड़ी टेस्टमनी है आपकी कि मैं वचन में जाता था, संगति में जाता था, मगर मैं तो गूंगा था, कभी बोलना ही नहीं, खाली सुनता ही था। तो आज मैंने बोलना शुरू किया है। हालेलुया! अंधे देखना शुरू कर दे, बोले, सुनने लगे, गूंगे। चलो मैं बोलूंगा, आपने बोलना, ठीक है जी? अंधे, अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े। आप देखो कैसे चला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ना मैं अंधा हूं, ना लंगड़ा हूं, ना बहरा हूं और ना गूंगा हूं, मुझे बोलना भी आता है। हालेलुया! मगर शैतान आपको यही देखना चाहता है, तुम बहरे रहो, तुम अंधे रहो, तुम बोलना मत, गूंगे रहो। आज तक नहीं बोलते आप। अंधा कौन है? जो बाइबल नहीं पढ़ता वो। बोलो आप। जो बाइबल नहीं पढ़ता वो कौन है? कौन कौन बाइबल नहीं पढ़ता? अब सब पढ़ेंगे। हालेलुया! जो बाइबल नहीं पढ़ते वो कौन है? अब आप देखो, सच्चाई बोलने से भी डर लगता है ना? तो जो बाइबल पढ़ते हैं वो अंधे नहीं हैं। लंगड़ा कौन है? जो वचन के अनुसार नहीं चलता, भविष्यता को जो तोड़ता है। भविष्यता क्या है? वचन में लिखा है तुम 6 दिन क्या करो, 7वें दिन, और जो 7वें दिन लगातार नहीं आता वो भी लंगड़ा है, चलता नहीं है ना। चलने को बोला है। सुनो, उसको छोड़ो। जो आदमी यीशु मसीह को देखने गया था उसको यही रोक देते हैं। अब सुनो यहां क्या लिखा है। हाँ, एक दिन यीशु एक नगर में था, लोगों के बीच में था। ये दिखाता है, नगर लोगों के बीच में दिखाता है। आगे, तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। कौन सा आदमी आया? कोढ़ से भरा हुआ। चलो, बहरे और गूंगे बोलना शुरू कर दो यीशु मसीह के नाम से। कौन आया? कोढ़ से भरा हुआ। ऐसे बोलने से शैतान को आपसे डर लगता है। अगर आप ऐसे बोलेंगे, डरता कौन है? बोलो, कौन डरता है आपसे? अगर आप बोलना शुरू कर दोगे तो। जब तक बच्चा छोटा है, मां कोई भी बात करती है उसके सामने, कोई भी बात करती है, किसी की भी बात करती है, सब बातें करती है जब बच्चा छोटा है। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उनके सामने बात उसको बोलती है, तुम बाहर बैठो, तुम खेलो, तुम खेलो, मैं इससे क्या करूं? बोलो, बात कर लूं। तुम खेलो, मैं बात कर लूं। क्योंकि वो बच्चों के सामने कुछ बातें नहीं कर सकती। ये समझो क्या है। सेकंड क्या था? सेकंड लाइन। हाँ,
तो वहां कोढ़ से भरा हुआ हाँ, कौन आदमी आया? आदमी नहीं आया, आदमी कुछ लेके आ रहा है साथ में, मुसीबत के साथ आ रहा है। तुम भी आज अकेले नहीं आए, तुम भी किसी मुसीबत को लेके आए हैं। और जब तक आप इस आदमी की तरह प्रभु के सामने नहीं आओगे, तुम भी अपनी मुसीबत से आजाद नहीं हो सकोगे। अगर तुम अपनी मुसीबत से आजाद होना चाहते हैं तो इस आदमी को ध्यान से देख लो। आज कोई अंधा तो नहीं है, सबको दिखाई देता है, सब सुनते हैं, बोल सकते हैं। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। अभी भी देख लो, कोई गूंगा है इधर जो बोलता नहीं है। शैतान ने उसको क्या करके रखा है? अपनी रस्सियों से बांध के रखा है। तो चर्च इसीलिए है, आपकी रस्सियां टूट जाएं, आपके बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले इसको तोड़िए, बोलना शुरू कर दो। अगर एक बच्चा बड़ा हो जाए, बोलना शुरू ना करे, तो मां क्या कहती है? इसको किसके पास लेके जाऊं? किसके पास? डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा तो हो रहा है, चल तो रहा है, खा तो रहा है, देख तो रहा है, सुन तो रहा है, लेकिन बोल तो इसका इलाज करना है। फिर पादरी साहब के पास भी आते हैं, हमारे बच्चे के लिए क्या कर दो? प्रार्थना कर दो। इसकी मुसीबत क्या है? बोलता बोलता। तो जो नहीं बोलते आज मुसीबत है पादरी के लिए। आज उनको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, जो यीशु मसीह डॉक्टर है। हालेलुया। तो वह बोलना क्या कर देंगे? बोलना शुरू कर देंगे। बोलना बोलना बोलना। जब तुम बोलना शुरू कर दोगे ना, मैं सच कहता हूं, तुम बहुत सी बातें सीख जाओगे। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो बहुत सी बातें सीख जाता है। पहले तो चमक बोलता है, सिर्फ मां को ही समझ में आता है ये क्या कहता है। दूसरे पूछते हैं ये क्या कहता है, फिर मां बोलती है ये दूध पीना चाहता है। मां को ही समझ में आता है। अब आज भी प्रभु यीशु आपको मां की मान्यता प्यार करते हैं, वो आपकी बातें समझते हैं। हालेलुया। हाँ, देखो क्या लिखा? एक मनुष्य आया। हाँ, तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। हाँ, देखो पहले लिखा है किससे भरा है? कोढ़ से। कोढ़ से भरा है। मनुष्य आया नहीं लिखा, कोढ़ से भर के आ रहा है। आज भी अगर आप पाप में हैं, पाप भी एक कोढ़ है, तो आप कोढ़ से भर के आ रहे हैं प्रभु के पास, एक मुसीबत के साथ आ रहे हैं आप। तो आपकी मुसीबत का हल कैसे होगा? आपने प्रभु के घर में आना कैसे है? आपको कैसे आना चाहिए? इसमें लिखा है। क्या लिखा है? और वह यीशु को देखकर। हाँ, किसको देखकर? यीशु को देखकर। इसका मतलब वो अंधा, देखो आप बोलते नहीं, इतने गूंगे हैं यहां। जब तक सभी सजाके ना हो जाए मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो उसने किसको देखा? किसको? हाँ, अब मुझे लगता है अंधे कम हैं। ये पाप में है तब भी किसको देख रहा है? वचन में लिखा जो पाप में है वो तो उसको देख ही नहीं सकता, मगर ये पाप में है, कोढ़ में है, तब भी किसको देख रहा है ना? अनुग्रह प्रभु का इसके ऊपर है कि नहीं है?
हालेलुया। जो भी आपके पास बैठा है उसको बोलो, आज के बाद अंधे बहरे गूंगे मत रहना प्रभु के नाम से। हालेलुया। कुछ ना यहां सो रहे हैं, उसको नींद आ रही है। कौन, क्या आप यहां सोने के लिए आते हैं? कोई यहां सोने के लिए आया है? नहीं, तो भी क्या कर रहा है? सो रहा है। यहां सोने के लिए आए नहीं है, सो रहा है। यहां प्रार्थना करने के लिए आए हैं तो भी आराम से बैठा है। सुनने के लिए आए हैं तो भी सुनना बंद करके, ये सारा उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आपको देखना आपके साथ हो क्या रहा है, यही प्रॉब्लम है। आज तक आपने देखा नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। जो भी आपके साथ हो रहा है, आज यीशु मसीह के नाम से उस सब को बंद कर देंगे हम। शाबाश। मैंने देखा काफी लोग बोल रहे हैं आज, हालेलुया। जब हो सकता है आप गूंगे ना भी हो तब भी बोलने में मुश्किल आएगी, क्योंकि अभी अभी आपका गूंगापन गया है प्रभु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने एक मैसेज भेजा था यूहन्ना को, अंधे अंधे बहरे गूंगे लंगड़े ये सब चल रहे हैं। आप तो वो वाला लंगड़ा ढूंढ रहे हैं, है ना? आप तो वो वाला अंधा ढूंढ रहे हैं। अंधे तो आप ही हैं, ढूंढ रहे हैं दूसरे को। कितने जन को समझ आ रहा है वचन क्या कहता है आज? हालेलुया। अपने हाथ हिलाओ और पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा, हम आज आपका स्वागत करते हैं यहां मुझे आजादी देने के लिए, मेरे से बातें करने के लिए, प्यार करने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। प्रभु का अभिषेक यहां आए, यहां प्रभु का अभिषेक आए। ऊंची आवाज से बोलिए, अभिषेक आए, मुझ पे प्रभु का अभिषेक आए। मांगो मांगो, ऊंची आवाज से मांगो। अभिषेक 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 अभिषेक, प्रभु का 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 अभिषेक। डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन। बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। अंधे देखें, बहरे सुने, गूंगे बोलना शुरू कर दें, बहरे सुनना शुरू कर दें, लंगड़े चलना शुरू कर दें, शुरू कर दें यीशु के नाम से। ऊंची बात से बोलिए आमीन, और ऊंचा आमीन। गुड गुड गुड, हालेलुया। ये एक्सरसाइज रहती है, हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की, प्रभु के नाम की। ऐसे ऐसे ऐसे, ये है आराधना। वो मुर्दों की आराधना पसंद, जो बोलता नहीं है, सो रहा है, वो क्या है? वो देख नहीं रहा, वो क्या है? क्या मुर्दा देख सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, ऊंची आवाज से चिल्ला सकता है? तभी तो उसको क्या बोलते हैं। जो ये काम नहीं करता वो क्या है?
क्या तुम प्रभु में मुर्दा हो? मुर्दा हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी क्लियरेंस पेश करनी पड़ेगी कि मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं जीवित हूं और प्रभु के मार खाने से मैंने चंगाई को पाया है। ओ हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया। ऐसा ही है? ओ, कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? यीशु मसीह के पास कोढ़ से भरा हुआ आया। कोढ़ से भरा हुआ आया। क्या आप बार 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 आ रहे हैं? क्या आपका कोढ़ चला गया कि नहीं? पाप एक कोढ़ है। आप प्रभु की प्रस्तिश में आते हैं, बाहर जाते हैं, पाप में जाते हैं, फिर आते हैं, बाहर जाते हैं, पाप में चले जाते हैं। क्या आप प्रभु के साथ कनेक्शन में आ सकते हैं? आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा? कभी नहीं आएगा। आपको पवित्रता में आना पड़ेगा। किसमें? पवित्रताई में। कौन पवित्रताई में आ सकता है? कैसे पवित्रताई में आ सकते हैं हम? किसके साथ रहे तो पवित्रताई में आ सकते हैं? क्या इफ वी पॉसिबल पवित्रताई में रहना पॉसिबल है? कौन है जो आपको पवित्रताई में रख सकता है? कैसे हम पवित्रताई में रह सकते हैं? पहली बात यह है, आज से अपना अंधापन छोड़ो, बहरापन छोड़ो, लंगड़ापन छोड़ो, गूंगापन छोड़ो, तब आप पाप से बाहर आ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको दिखाता रहता है ये पाप है, पाप है, पाप है। आप तो अंधे हैं, देखते नहीं हैं, तो पाप में चल जाते हैं। फिर वो आपको ऊपर से नीचे फेंकता है। जितनी ऊंचाई पे हैं, अगर वहां से गिरेंगे तो चोट, बोलो चोट, चोट लगेगा नहीं, ज्यादा लगेगा। जो टेबल से गिरेगा उसको खतरा कम है, जो ऊपर से गिरेगा उसको ज्यादा है। तो उसको ज्यादा संभल के रहना है जो ऊपर जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपने जीवन में, वो गिरते हैं, वो पुलपट पे चले जाते हैं, वहां से गिरते मैंने देखा है। इससे बड़ी बात और क्या है? पुलपट वो जगह है यहां परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है। अगर आपने एक भी गलती कर ली तो वहां नहीं जा सकते, आप गिरेंगे, प्रभु की प्रस्तिश में रह नहीं पाएंगे आप। अंधे हैं तो पवित्र आत्मा दिखाएगा, दिखेगा नहीं। पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है, ये बोलो, ये ऐसा बोलो। अगर आप गूंगे हैं तो बोल नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे, वो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो आप गिरेंगे, पड़ेंगे खड्डे में, आपका नाक टूटेगा, पैर टूटेगा, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं, आप बोलते नहीं हैं। प्यास लगी है तो मांगेंगे, कैसे? सबको समझ में नहीं आता गूंगा क्या बोलता है, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। ऐसे उसको न्यूज बताया जाता है ये क्या हो रहा है, वो समझते हैं, उनको क्लास चाहिए। मगर जो लोग आप हैं, आप गूंगा होने की एक्टिंग करते हैं, असल में आप गूंगे नहीं हैं, क्योंकि आप किसके साथ रले हुए हैं? पाप के साथ। पाप चाहता है आप बोले मत, सुने मत, चिल्लाए मत। तो एक मनुष्य किसके पास आया? यीशु के पास आया। वेरी गुड।
किसके पास? ऐसा ही लिखा है, कोढ़ से भरा हुआ आया है, पाप से भरा हुआ आया है। उसने आके यीशु मसीह को क्या बोला, ध्यान से देखो। हाँ, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। वाह, कोढ़ से भरा है मगर उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। मगर उसने यीशु के मिलने का जो ढंग अपनाया वो बाकमाल का है। सामने आते ही क्या कर गया? झुक गया। सामने आते ही क्या कर गया? झुक गया। आज हमारी ये भी प्रॉब्लम है, हम झुकते नहीं हैं, हमें झुकना सीखा ही नहीं है। आप चर्च में आते हो, इतना निम्रता से एंट्री मारो, इतनी निम्रता से अंदर घुसो कि पवित्र आत्मा, प्रीचर्स एंड वॉलंटियर्स को यह पता चले कि बहुत ही बाकमाल एंट्री करी है इसने। आपकी एंट्री कैसे रहती है चर्च में जब आप आते हो? डिफरेंट स्टोरी है। अगर प्रभु से आशीष लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। ऐसे तो मांगने वाले भिखारी को भी आप पैसा नहीं देते जब तक वो आपके सामने झुकता नहीं है। सही है? सही है तो हाथ उठाओ, नीचे करो। ऐसे हाथ उठाना किसने सिखाया आपको? सही है? हाँ, नीचे करो। सही है? हाँ, अब ठीक है। अगर आपके सामने भिखारी आ जाए तो, आपके सामने कोई भिखारी आ जाए तो बोले, ए बाबू दे 100 का नोट, दोगे? एक छोड़ेंगे आप इधर से, और मन करेगा एक इधर से भी छोड़ दो। वो कैसे आपके सामने कैसे आता है? ऐसे आता है, ओए बाबू, ओ सरदार दे 10 रुपये। ऐसे कभी आया कोई? आया कोई? कभी देखा आपने? हे मैम साहब दो $50, कोई आया ऐसे? कैसे आते हैं फिर? बाबूजी मेहरबानी करके मुझे 10 रुपए चाहिए। 5 तो देगा ही, क्योंकि मांगने का स्टाइल, हमारा मांगने का, प्रार्थना करने का स्टाइल क्या रहता है? कभी कभी आप अपने बेड पे हैं, ठीक है, मानो ये बेड है आपका, ये आपका बेड है, ठीक है, तो ओए देखो, तो ऐसे आप बैठे हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़े समय के बाद आप एक तकिया उठाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगता कोई राजा राजे से बात कर रहा है। ऐसे प्रार्थना करते करते थोड़े समय के बाद फिर आप क्या करते हैं? तकिया इधर लगाते हैं, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा चलता है ना? सच में बताओ, चलता है ना? चलना चाहिए। ऐसे चलेगा? लगता नहीं है चलेगा। प्रार्थना करने का एक परमेश्वर ने आपको हुक्म दिया है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम किसी गुलाम के साथ बात कर रहे हो। वो आपका गुलाम है। ऐसे शाही अंदाज से बेड पे जाके फैन ऑन करके, एसी ऑन करके,
तकिए के ऊपर ऐसे रख के बाजू, फिर आप लत के ऊपर लत भी रख लेते हो, टांग के ऊपर टांग कभी कभी, फिर आप बोलते धन्यवाद धन्यवाद। वो सोचता होगा यार राजा मैं हूं या जे है? ये प्रार्थना करने वाला आदमी कर क्या रहा है? क्या ऐसी प्रार्थना उत्तर लेके आएगी, आंसर लेके आएगी? कभी नहीं लेके आती वो आंसर। प्रार्थना कैसे करनी है? जब तुम अंधेपन से बाहर निकलोगे तुझे मालूम हो जाएगा। प्रभु के साथ बातें कैसे करनी है, जब तुम बोलना शुरू करोगे ऑटोमेटिक आपको सीख जाएंगे आप कैसे बातें करनी है। तो एक मनुष्य कोढ़ के साथ भरा हुआ यीशु मसीह के पास आया और उसके आने का अंदाज देखो कैसे आया वो। मुझे तो इतना पसंद है, ऐसे आया वो प्रभु के पास। देखो उसकी बल्ले बल्ले हो गई जब वो आया। क्या लिखा है, कैसे आया? और वे यीशु को देखकर हाँ, मुंह के बल। किसको देखकर? यीशु को देखकर झुक गया, नीचे हो गया। जी आजकल नीचे होना बड़ा मुश्किल है। तुम तो चर्च में आकर थोड़ा सा ऊपर हो जाते हो ऐसे, क्योंकि तुम अच्छी गाड़ी से आते हो, अच्छे कपड़े पहन के आते हो, आपके पास अच्छा पैसा भी हो सकता है, आपकी पास्टर से सीधी बात भी हो सकती है, आप चर्च में अच्छा दान देते हो, आपके सेवादार के ऊपर जो सूबेदार है वो आपका रिश्तेदार है, वो जो स्टेज पे खड़ा है वो आपका भाई है, वो जो पास्टर है आपने एक दिन पास्टर जी के साथ खाना खाया था, तो आप थोड़ा सा चर्च में ऐसे चलते हैं। ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। इससे सीखो। यीशु को देखा, कौन सी ऐसी बात है? यीशु को देखा और झुक गया, क्योंकि वो जानता था जीवन यीशु मसीह के ही पास है। हालेलुया। जीवन यीशु मसीह के पास ही है। चंगाई, छुटकारा, और जो गूंगे हैं वो भी बोले छुटकारा। हालेलुया। अच्छा, झुका फिर क्या हुआ? तुम ज्यादा खुश ना हो यार। हाँ, क्या लिखा है? और विनती की। हाँ, क्या किया? ये क्यों हंस रहे हैं ना, मुझे सब मालूम है, आपके ऊपर हंस रहे हैं। अच्छा, क्या किया उसने? और विनती की। क्या किया? विनती। क्या किया? विनती की। ये जो पहले एक आदमी यहां आया था वो भी विनती कर रहा था। उसका और इसका अंदाज दोनों क्या है? अलग अलग है ना। इसका अच्छा है कि उसका? किसका अच्छा है? इसका अच्छा है ना। विनती कर रहा है। वो क्या कर रहा था? वो टाइम पास कर रहा था, सिर्फ ऐसे बोलने के लिए कि मैं प्रार्थना करता हूं, बस खाली दिखाने के लिए। ये असली है, वो नकली था। और देखो उसने विनती की, आकर विनती की। क्या किया उसने विनती में? क्या बोला? हे प्रभु। हाँ, हे प्रभु। हे प्रभु। हाँ, यदि तू चाहे। जब भी, अगर तू चाहे, तू चाहे, मैं नहीं चाहता, अगर तू चाहे, इसका मतलब प्रभु की इच्छा को पहले लेके आया वो। तो हम आते ही क्या करते हैं? प्रभु ये कर दे, आज प्रभु वो कर दे, आज ऐसा कर दे, ऐसा वैसा कर दे। तुम तो अपनी मर्जी के साथ आते हो। और इससे देखो, इससे सुनो, ये कैसे आया? रिपीट करें। और विनती की। हाँ, हे प्रभु। हे प्रभु, यदि तू चाहे। यदि तू चाहे। बोलो, यदि तू चाहे।
इसका मतलब उसने क्या किया? बहुत ही शार्प माइंड आदमी है, हैं? उसको पता है, मालूम है बरकत चंगाई कैसे लेनी है। उसने सबसे पहले प्रभु को आगे कर दिया और आप उसके पीछे हो गया। अपना भी बोल दिया कि मैं ये चाहता हूं, साथ में ये भी बोल दिया जो तू चाहे, जैसा तू चाहे। ऐसा लिखा, यदि तू चाहे, यदि तू चाहे तो क्या करना? हाँ, तो मुझे शुद्ध कर सकता मुझे है। क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। मुझे क्या कर सकता है? गूंगे बोलो, मुझे क्या कर सकता है? हाँ, शुद्ध कर सकता है। आज ये नहीं बोलना सीधा, ओ प्रभु मेरी पथरी निकाल दे। प्रभु मैं आता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं, झुकता हूं, तू ही सच्चा है, जीवित है। यदि तू जाए तो ये थोड़ी सी पत्थरी हटा दे। समझे मेरी बात? तुम तो सीधा अटैक करते हो, पत्थरी निकाल प्रभु, निकाल मेरी पत्थरी, तब मानूंगा तू प्रभु है। दे मुझे वीजा, लगा मुझे अमेरिका का वीजा, तब मानूंगा तू प्रभु है। ये प्रार्थना अच्छी है कि वो वाली अच्छी है? कौन सी आपको लगता है, कौन सी प्रार्थना रिजल्ट कायम करेगी? वो वाली सही है। जो आप करते हैं वो आज वो जीरो हो गई। जो आप करते हैं, सीखो वचन में क्या लिखा है, कौन सी प्रार्थना रिजल्ट लेके आती है। वो जो बेड वाली प्रार्थना रिजल्ट लेके आएगी? नहीं। वो वाली प्रार्थना से अच्छा है तुम किसी से लड़ाई कर लो बाहर जाके, किसी को पता तो चलूगा कि तुम लड़ रहे हो। वो यदि हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू चाहे, हे प्रभु, बोलो ना, हे प्रभु, हे प्रभु, आनंद से, आनंद से, हे प्रभु। देखो कितना अच्छा है। ये कहने की बजाय, अच्छा प्रभु आज मेरी पत्थरी निकाल दे। वो शुरू कहां से करता है? हे अच्छा लग रहा है आपको? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रभु को भी क्या लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो अब देखो आगे क्या लिखा है, हे प्रभु के बाद यदि तू चाहे, यदि तू चाहे, हम चाहे, हम क्या बोलते हैं, जो हम चाहे वो करना। पादरी साहब जो हम चाहे वो करो, मेरे घर पे आओ आओ, मुझे कल मिलो ही मिलो, मेरा फूल उठाओ उठाओ, मेरे लिए फास्ट करो ही करो। हम जो चाहे नहीं नहीं, प्रभु जो तू चाहे, तेरी मर्जी पूरी हो। नहीं नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। इस पत्थर पे लीक है। मैंने तो आज पादरी का दरवाजा तोड़ के फिर मिलना उसको। हे प्रभु यदि तू चाहे, एक बार प्यार से बोल के देखो कितना आनंद आता है। हाँ देखो, आनंद से भर के, हे प्रभु यदि तू चाहे तो। अच्छा, फिर यदि तू चाहे तो क्या हो जाए? तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध। उसने इसमें देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, तू मुझे शुद्ध कर सकता। ये नहीं बोला प्रभु ट्राई करो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अब प्रार्थना कर दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब प्रार्थना कर दो, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है, हम तो ट्राई करने के लिए आए हैं। मगर इसने क्या बोला? पूरे कॉन्फिडेंस से बोला है। क्या बोला? वो वाला इतना ही। हाँ, तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू मुझे शुद्ध कर सकता। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसने सीधा बोल दिया कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। हम कभी कभी ये बोलते हैं, हाँ मैं 3 हफ्ते प्रार्थना करके
देख लूंगी, देख लूंगा। उसने सीधा क्या बोला? तू कर सकता है। झुक गया। हे प्रभु, देखो कितने कितने अच्छे शब्द थोड़े ही रखे उसने, मगर इतने कमाल कर दी उसने। बड़ी मुसीबत में है ये, कोर्ट से भरा है, कोई भी व्यक्ति इसको शहर आने की इजाजत नहीं है, इसको लोगों के बीच घूमने की इजाजत नहीं है। जिस वाटर कूलर से आप पानी पीते हो वहां पानी पीने की इजाजत नहीं है। जिस चेयर से आप बैठे हो उस चेयर में उसके बैठने की इजाजत नहीं है। यहां से आप अपना थाली उठा के खाना खाते हो, वहां इसको जाने की इजाजत नहीं है। ये गांव के बाहर फाटक में रहता है, अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं है इसको। तो देखो कितना बड़ी मुसीबत में बड़ा काम किया इसने। जब आप बड़ी मुसीबत में होते हो उतना ही बड़ा भरोसा प्रभु के ऊपर करना पड़ेगा आपको, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी, चंगाई हो जाएगी, बंधन टूटेंगे प्रभु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। क्या लिखा था? यदि तू चाहे। हाँ, फिर तू मुझे क्या कर सकता है? तो मुझे शुद्ध कर सकता है। गूंगे बोलो, क्या कर सकता है? जब मैं बोलता हूं गूंगे बोलो तो सब बोलते हैं। ये बाकमाल की चीज है आज चर्च में। सब बोलो, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। आज भी आप अन्य प्रकार के पापों के कोढ़ में हैं, चाहे वो आपकी सोचों में हो, वो भी कोढ़ है। आपने किया कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं किया, मगर अंदर सब कुछ कर लिया। इसमें खोपड़ी में सब कुछ कर दिया, तो आप क्या है? कोढ़ में है। ऐसा ही कोढ़ जो इस व्यक्ति को है। प्रभु आपको जांचता है। अगर आपके मन में गंदगी है तो आप पवित्र स्थान में खड़े नहीं हो सकते। और एक दिन आएगा पवित्र स्थान में आने का रास्ता भी आपका बंद हो जाएगा अगर आप गंदगी में हैं। आपको गंदगी से बाहर आना है। जब तुम गंदगी से बाहर आओगे तब तुम प्रभु की महिमा को पाओगे। इधर देखो क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? इधर देखो ध्यान से। हाँ, उसने हाथ बढ़ाकर। हाँ, यीशु ने क्या कहा? उसने इतनी बातें की। यीशु मसीह ने कोई बात की? हेलो, कोई बात की? बोलो ना फिर, कोई बात की? नहीं, ऐसे बोलते हैं जैसे किसी कुएं में गिरे हैं। कोई बात की यीशु ने? नहीं, ऐसे बोलो, कोई बात की? अगली बार कुर्सियां रहे, कुर्सियों के पीछे जो ढासना लगाते हैं वो सब काट दो। ठीक है सर। जितना आपको आराम मिलता है उतना ही आप आलसी बनते जा रहे हो। आराम चाहिए आपको? आराम चाहिए, मगर आलस नहीं होना चाहिए। उसमें डालो मत। अगर चावल कितने पसंद करते हैं चावल खाना? चावल खाते हैं ना सब? ओके, अगर वो आटे में मिला दे, उसकी रोटी बना के दे, तो पसंद करेंगे? बखरा बखरा होना चाहिए, अलग अलग। ऐसे ही जब ये पाठ प्रभु की स्तुति का है तो आलस मत करो। क्या लिखा था? उसने हाथ बढ़ाकर। क्या बोला यीशु मसीह ने? अच्छा, हाथ बढ़ाकर, वेरी गुड। बोला कुछ नहीं, सीधा ही क्या किया? सीधा ही हाथ बढ़ा दिया। क्यों? उसने इतना बोला, इतना प्यारा बोला, इतना सुंदर बोला, इतना अच्छा और गहरा बोला। प्रभु ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था ये आदमी कौन है?
समझदार आदमी है और विश्वास में से भर के आया है। कभी कभी तुम बोलते हो पास्टर जी इसके बारे में बताओ, वो बोलता चलो मैं प्रार्थना कर, नहीं मुझे बताओ तो सही। समझे मेरी बात? उसने क्या बोला? सीधा हाथ बढ़ाया, फिर क्या किया? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। बोला क्या? बोला कुछ बोला ही नहीं। प्रभु ने तो बोला ही नहीं कुछ। प्रभु बहुत ही खास मकसद के समय बोलते हैं। मकसद है तो बात करेंगे। तो उसने सीधा हाथ बढ़ाया, क्या फिर किया उसके बाद? और उसको छुआ, हाँ, और कहा हाथ बढ़ाया, छुआ। उसके बाद जब उसने हाथ बढ़ाया और छुआ, उसी समय तो वो चंगा हो गया था। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने बोला, क्या बोला फिर? मैं चाहता हूं। हाँ, बोलो, मैं चाहता हूं। उधर से तुम बोलते हो मैं भी चाहता हूं। तुम्हें तो कुछ पूछा ही नहीं है। तुम क्या चाहते हो ये तो पूछा ही नहीं है। तुम तो खामखा सामने मैं भी चाहता हूं। तुम्हें तो पूछा ही नहीं। प्रभु ने बोला मैं चाहता हूं। जब प्रभु ऐसा बोले मैं चाहता हूं, आगे से शोर मत बचाओ, आराम से बैठे रहो, सुनते रहो क्या हो रहा है। यह हमारी दिक्कत परेशानी है। जब वो बोलता है मैं चाहता हूं, तब हम शोर मचाने लगते हैं। प्रभु मैं ये चाहता हूं, प्रभु मैं वो चाहता हूं, प्रभु मैं ये भी चाहता हूं। बड़ी कुड़ी वहां चले जाए, छोटी वहां चले जाए, बड़ा बेटा वहां चल जाए, छोटा बेटा वहां चल जाए, पति वहां चल जाए, मैं भी उसके साथ चली जाऊं। ये तो पूछा नहीं प्रभु ने अभी। अब प्रभु ने कुछ और कहा है। प्रभु ने क्या बोला है? मैं चाहता हूं। मैं, बोलो ना, हाँ, मैं चाहता हूं। वाह, कितनी बड़ी बात है जब प्रभु आपसे कुछ चाहते हैं। अगर आपको भगवंत मान साहब का फोन आ जाए, ABCD कोई भी नाम लेके वो बोले कि हरिंदर सिंह मैं चाहता हूं तो कल मेरे पास आ, मैं तेरे साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, तो वो क्या करेगा? उल्टी बाजी लगाना शुरू करेगा। मुझे किसका फोन आया है? CM साहब का फोन आया है। मगर इधर किससे बात हो रही है और किस व्यक्ति की हो रही है? एक कोड़ी की बात हो रही है प्रभु से, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए कुर्बानी देने के लिए आया है, सबको बचाने के लिए आया है। तब उसने बोला मैं चाहता हूं। क्या चाहता है? देखो ध्यान से, हाँ, तू शुद्ध हो जा। वाह क्या बात है। मैं क्या चाहता हूं? तू चंगा हो जा। कितने विश्वास करते हैं कि जो प्रभु चाहते थे वो हो गया? हालेलुया। देखते हैं बाइबल में क्या लिखा फिर। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हाँ, उसका कोढ़ तुरंत उसी समय क्या हुआ? चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के समय के लिए, आशीष के लिए, गहराई के लिए। तेरा आत्मा यहां आए, यहां बंधन टूटे प्रभु तेरे नाम से, बड़े बड़े मिरेकल्स हो प्रभु तेरे नाम से। तेरी आशीष ठहरे प्रभु यहां, तेरा अनुग्रह हम पर आए। हम विश्वास करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरा जलाल हमें छू लेता है। इस वचन के द्वारा हम आशीष पाते हैं। आज के बाद हम
सुजाके हो चुके हैं, हम बोलना शुरू कर दिया है, हमारा लंगड़ापन चला गया है, बहरापन चला गया है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद मेरी प्रार्थना तुम स्वीकार करोगे और तुम जो चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। तेरी आशीष मुझ पे आए, 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 यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। ओपन डोर चर्च खोजपाला, जिला कपूरथला, पंजाब। जिथे परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੁਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ, ਬਿਮਾਰ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ।